مجھے لگتا ہے کہ مہراج ملک کو لے کر کیا کہنا آپ کا؟ اتنی دیر تک پی ایس اے میں لیکن اندر میں یہ کہوں گا جہاں مہراج ملک کی بات آئی تو یہ ہے کہ اس ایشو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہاؤس میں بھی. اچھا بڑے کھیل میں بھی وہی والا پروسیجر اسٹیبلش کیا گیا. اب کیا ان کو بنا ریٹرن کے ہی آپ کی گورنمنٹ ریگولائز کرنے جا رہی ہے یا کوئی اس کا پراودھان بنایا ہے ریٹرن کا؟ دیکھیے اگر کہیں پر کچھ ایسا معاملہ ظاہر ہوتا ہے، منظر عام پر آتا ہے کہ کسی نے سروس کے دوران کوئی ڈگری حاصل کی، تو آپ جانتے ہیں کہ سروس ٹولز یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی سروس کے دوران اگر کوئی تعلیم اپنی جاری رکھے یا کوئی پریکٹیکل چیز تو اس کے لیے باضابطہ اجازت ہو اپنے امپلائر کی. تو وہ اسٹیٹ ہونے کے ناطے آپ کے ذمہ ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار مہیا کریں. لیکن لیے کوئی فنڈ کا ایلوگیشن ہوگا جو نیو ریکروٹمنٹس ہونی تھی، کیونکہ پہلے سے یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنر ستیہ پال ملک جی نے فری سروس وومن کے لیے ہے. یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ یہاں پہ کہیں کہا کہ سرکار اس سے لاس میں بھی جا رہی ہے. مینیفیسٹو تھا، مینیفیسٹو پہ چیف منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ مینیفیسٹو ہم نے غلطی کر دی مینیفیسٹو بنا کے. لیکن مینیفیسٹو میں نے پہلے بھی ایجوکیشن کو ہی پرائیورٹی رکھا، کیونکہ اگر ایجوکیشن جس ملک کی بہتر ہو یا جس اسٹیٹ کی بہتر ہو تو وہ امپاورڈ ہو جاتے ہیں. جو ہے یہ ان امپلائڈ جو ہے یوتھ، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرے. ایک تو یہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ کا استعمال ہو، ان کا وقت وہ صحیح طور پر جو ٹائم ریسورس ہوتے ہیں ان کا صحیح استعمال ہو، اور پھر ان کے لیے روزگار کا بھی کچھ اہم ہوگا. سوال یہ ہے آپ کی سرکار کے پاس کیا روڈ میپ ہے کہ ان کو پرماننٹ ریگولائز کیا، لیکن وہ ستیہ پال ملک کا سیک کا آرڈر وہ سر ریووک نہیں ہوا. جناب اہم سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوگی، اینٹی کرپشن بیورو ہوگی، CID ہوگی، انہوں نے ایک ڈیٹا نکالا ہے. وہ ڈیٹا اس پالیسی آئے گی، ان کی دوبارہ سے ویریفیکیشن ہوگی آپ کی سرکار؟ نہیں وہ تو دیکھیے وہ تو ان اداروں کا کام ہے جن کو ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں، کیونکہ جب آپ کے جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ جج صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے. لیگلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور پولیٹیکلی بھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا سواگت ہے جی ہمارے چینل. بہت شکریہ جی. جناب جو بجٹ سیشن ہے، بجٹ سیشن ہوا، بجٹ سیشن کے بعد یہاں پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے، موسٹلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لے کر کھڑے ہوئے کہ بجٹ کے اندر ایسا جو یوتھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی پالیسی آئے گی یا ہمارے لیے کوئی فنڈ کا ایلوگیشن ہوگا جو نیو ریکروٹمنٹس ہونی تھی، کیونکہ پہلے سے یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنر ستیہ پال ملک جی نے بند کر کے رکھا. 100% ریزرویشن دے دی کہ RET کو پروموشن کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ ڈیڈ لاک میں چلے گئے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ریکروٹمنٹ 2012-13 کے بعد آج تک نہیں ہوئی. اسی میں ایک یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ آتا ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایک بلک میں ریکروٹمنٹ کی PDP اور BJP کولیشن سرکار میں ایک پاس کیا رہبر کھیل کے طرز، رہبر تعلیم کے طرز پہ انہوں نے رہبر کھیل لایا، اس میں 7 سال کا ٹائم پیریڈ کر دیا. وہ بچے سوچ رہے ہیں کہ ہماری پروموشن ہوگی، لیکن یہاں سے 40,000 کا اپروکسیمیٹلی ڈیٹا ہے. وہ بچے سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہماری نوکری لگے گی. تو 10 سال ان کا 19 میں ان کی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی اس کے لیے دیکھ رہے تھے. لیکن بجٹ میں ایسا کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے جو ان کی انشورنس دے کہ بھائی ان کو نئی نوکری لگے گی. دیکھیے پہلی بات ہے جیسے آپ نے اب تک جو بھی بات ہوئی اس سے یہ ظاہر ہوا ہوگا کہ یہ بجٹ مجھے لگتا ہے پچھلے 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ پرو پیپل پرو پور بجٹ ہے. جی تو تقریباً ہر ایک سیگمنٹ کا خیال رکھا گیا، جو آبادی کا ہر ایک سیگمنٹ ہے اور سرکار جو ہر ایک شعبہ ہے. آپ شروعات کہاں سے کریں گے؟ تعلیم سے کریں گے، ہیلتھ کیئر سے کریں گے، باغبانی سے، ہارٹیکلچر سے یا ایگریکلچر جو بھی ہے، روڈ کنیکٹیوٹی ہو. تو تقریباً ہر ایک جو شعبہ ہے اس کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے ممکنہ حد تک کہ وہاں کوئی راحت ہو. اب دیکھیے جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا کیو، آخری پائیدان پر، وہ ہے کہ وہ جو ہے پورسٹ آف دا پور، چھوٹا ہی اس کی شرح کم ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہی زیادہ وہ جو ہے بینیفیشری کے جو ٹارگٹ گروپ ہے وہی سارا زیادہ ٹارگٹ گروپ ہونا چاہیے، بینیفیشریز ہونی چاہیے. اب دیکھیے ان کے لیے ایک تو آپ 200 یونٹ بجلی وہ تو ہے ہی ہے،
जो ये हमारे जो डिसएम्पावर्ड अंडर प्रिविलेज जो हमारा सेगमेंट है, तो 6 जो गैस सिलेंडर है वो, तो फिर उनके बच्चों के लिए ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, और देखिए ये हुआ जहाँ जो ये सेगमेंट है, और फ्री राशन, और 200 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सेगमेंट का जो सबसे ज़्यादा मुतकाज़ी है, तकाज़ा करता है कि हमारी तवज्जो तलब है, हमारा जो भी सरकार हो। तो उसके बाद देखेंगे जो अब हमारे और हम जैसे हमारी ख़वातीन हैं, ये भी एक वो सेगमेंट है सोसाइटी का जो कि आज तक ये तो डिसएम्पावर्ड रहा है, बेख्तियार रहा है। इसको बाख्तियार बनाने के लिए आप देखिए कि फ्री बस सर्विस, ये फ्री बस सर्विस में अब देखिए हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं छोटी, जो जाती हैं एजुकेशन के लिए, ट्यूटर के लिए, ट्यूशन सेंटर्स के लिए, कॉलेज स्कूल्स के लिए, वो अब फ्री बगैर किसी किराए के वो अब सफ़र कर रही हैं अपना। तो मतलब है वालिदैन पर ये बोझ कम हो गया जो बच्चों को। अच्छा सर, आपने एक सवाल मेरे मन में डाल दिया। आपने कहा जो ये फ्री सर्विस वुमेन के लिए है, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे कहीं कहा कि सरकार इससे लॉस में भी जा रही है। दूसरी बात ये है सर कि जिन वुमेन को ये जो अनएम्पावर्ड सोसाइटीज़ में हैं, उन लोगों के लिए सर्विस होनी चाहिए। वो मोस्टली रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और जम्मू अर्बन एरिया है या कश्मीर अर्बन एरिया जहाँ पे ये बस सर्विस दी गई, वहाँ पे जो एम्प्लॉय केएस ऑफिसर हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ पार्क करके दूर दूर ड्यूटी पे वो लेडीज़ जा रही हैं। देखिए अब हम जब ये दे रहे हैं ना राहत, हम एक आबादी की एक हिस्से को दे रहे हैं, एक सेगमेंट को दे रहे हैं, मतलब ख़वातीन को दे रहे हैं। जब ख़वातीन को, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ऐसी ख़वातीन होंगी जो शायद उससे ज़्यादा जिनकी माशी हालत बेहतर हो जो आम ख़वातीन की, लेकिन ये मुसलमान हकीकत है कि रूरल एरियाज़ में भी देखिए मेरे इलाके में 5 गाड़ियाँ 6 रूट्स पर गाड़ियाँ हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 रूट्स पर यही जो है बस, पारीगाम हो, पारीगाम से न्यू हो, पामपुर से खरीव हो, खुनमू हो, बालहामा से वहाँ से, तो यहाँ से आप देखिए पिंगलना हो, तो 5 रूट्स पर, मेजर रूट्स पर यही बसें चल रही हैं और आवाम को राहत है। अब देखिए दूसरा एक सेगमेंट में, उस पर मैं आपसे ये सही है आपका कहना है कि नहीं, कुछ है जो बाइख्तियार पहले से हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, तो वो भी इसका, लेकिन ये तो होना ही होना है। अब देखिए जैसे हमारा हॉस्टल है, उस हॉस्टल में आम जो अमीर आदमी है वो रुख कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का भी, लेकिन जहाँ तक सरकारी अस्पताल है वहाँ भी कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइख्तियार हैं, जिनके पास वसाइल है, वो वहाँ भी आ जाते हैं इन अस्पतालों का भी, लेकिन आम तौर पर मजबूरी तौर पर गरीब ही आते हैं जो इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। अब वो एक देखिए, अभी देखिए जैसे हमने कहा इस सरकार ने पहली बार किया, जो हमारे स्पेशली एबल्ड है, जो हम कहते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने किसी और, उनका कोई और एबिलिटी होती है, एक एबिलिटी अगर कम हो लेकिन और होती है, स्पेशली एबल्ड है, तो ये है कि उनको लिए ही बस सर्विस रखी चुकी थी, वो अब सफ़र कर सकते हैं बगैर कोई किराए दिए। अब उनमें भी कोई एक आध होंगे वो जो बाइख्तियार है, जो मुलाजिम है, जिनकी तनख्वाहें अच्छी है, जिनका कारोबार अच्छा, लेकिन वो होता है हर एक जो एफर्मेटिव एक्शन होता है, हम अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन। हर एक जो सरकार अपनी तरफ से कि वेलफेयर स्टेट होने के नाते से जो किसी के लिए, किसी ऐसे तबके के लिए जो डिसएम्पावर्ड हो, डिसएडवांटेज हो, तो उसके लिए कोई कदम उठाए तो उससे मुस्तफीद सर ये जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो पे चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि मैनिफेस्टो हमने गलती कर दी मैनिफेस्टो बना के, लेकिन मैनिफेस्टो में मैंने पहले भी एजुकेशन को ही प्रायोरिटी रखा, क्योंकि अगर एजुकेशन जिस मुल्क की बेहतर हो या जिस स्टेट की बेहतर हो तो वो एम्पावर्ड हो जाते हैं लोग। लेकिन वहीं पे रूरल एरिया की बात करें, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल्स की, उसके लिए कहा गया, लेकिन वहीं पे जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, वो क्वालिटी एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की जजमेंट कहती है, अब रिव्यू में भी चले गए हैं टीचर लोग, कि हर एक टीचर का सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है बच्चे को। वहीं जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर आरईटी बेस पे जो लगाए गए उन्हें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड से रिक्रूट नहीं हुए, लेकिन अब वहीं पे उसी तरह पर रहबरे खेल भी है, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, ये सब जितने भी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड के तहत नहीं, एक कमेटी बनाई उसके तहत इनकी रिक्रूटमेंट की। अगर पिछले 12 की बात मैंने पहले भी की, 12 से 26 तक जितनी यूथ इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में मास्टर्स कर रही है, पीएचडी कर रही है, वो रोड पे हैं, वो उस एजुकेशन सिस्टम में आ ही नहीं रहे हैं। तो इनको लाने के लिए आपकी सरकार के पास क्या रोड मैप है कि उनको परमानेंट रेगुलाइज किया? लेकिन वो सत्यपाल मलिक का सैक का आर्डर,
वो सर रिवोक नहीं हुआ। पिछले साल, ये साल भी हो गया आप कैबिनेट में, तो अब तो पावर है, उसको तो रिवोक कर ही सकती है देखिए सरकार। जहाँ तक रोज़गार की बात है, मुलाजमत की बात है, इस साल हमारा कोई 25,000 के करीब असामियाँ रेफ़र करने का और उसमें रिक्रूटमेंट शफाफ तरीके से करने का एक प्लान है। लेकिन नहीं, मैं जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ सर, उसमें बार लगा है, मैं वो चीज़ उसी पे तभी पर्टिकुलर आया हूँ। उसमें जो हमारे अभी अभी आप देखेंगे जो हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन को जो रेफ़र किए गए 10+2 जो लेक्चरर्स हैं की असामियाँ कोई 500 के करीब हो गई। तो इसी तरह स्कूलों में जो है अब ये आप देखिए जैसे ये रहबर तालीम या रहबर ज़राअत या रहबरी सेहत भी और रहबर अब जंगलात भी था। तो बात ये है कि एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते आपके ज़िम्मे है कि आप लोगों को रोज़गार मुहैया करें, लेकिन साथ ही आपके वसाइल कम हैं और रिसोर्स कम है, रिसोर्स क्रंच है और क्या जो बड़ा डिफिसिट है रिसोर्स का। तो उससे क्या है कि लेकिन क्या है अब एक वेलफेयर स्टेट के लिए ये रहता है, ये मामला रहता है कि रिक्रूटमेंट भी कर, रोज़गार भी फराहम करना है, वसाइल भी कम है। अब ये एक मिडल का एक बात है कि चलिए हम पोस्ट सेंक्शन ग्रेड में तो रिक्रूट नहीं करेंगे, तो लेकिन तक तो फिर भी तो भी इस जो ये एक जो है ये अनएम्प्लॉयड जो है यूथ, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करे। एक तो ये उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट का इस्तेमाल हो, उनका वक्त वो सही तौर पर जो टाइम रिसोर्स होते हैं उनका सही इस्तेमाल हो और फिर उनके लिए रोज़गार का भी अहम कुछ हो। सवाल ये है जनाब, अहम सवाल ये है कि यहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होगी, एंटी करप्शन ब्यूरो होगी, CID होगी, इन्होंने एक डेटा निकाला है, वो डेटा हमारे पास भी है। उसमें एक कमिश्नर का डबल बेंच की जजमेंट भी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, कैट बेंच की। उन्होंने कहा कि जो ये टीचर और लेक्चरर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर रिक्रूट हुए हैं, इसमें कुछ ऐसे डिग्री होल्डर्स हैं जो आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहीं जो डिग्रियां लाई हैं वो इन ड्यूरिंग सर्विस लाई हैं और वहाँ पे भी प्रेजेंट है। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और 50% प्रैक्टिकल है, मतलब ये इसमें रेगुलर ही आपको जाना है। और ये इन सर्विस भी हैं, यहाँ पे भी अटेंडेंस है, सैलरी ली है और वहाँ पे भी इनकी डिग्री आ गई है। वो उनको एज ए DSO डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लगा दिया गया है, वही यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के अंदर आकर काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को स्क्रूटनाइज़ करने के लिए अब रहबरे खेल में भी वही वाला प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया। अब क्या इनको बिना रिटर्न के ही आपकी गवर्नमेंट रेगुलाइज करने जा रही है या कोई इसका प्रावधान बनाया है? देखिए अगर कहीं पर कुछ ऐसा मामला ज़ाहिर होता है, मंजर आम पर आता है कि किसी ने सर्विस के दौरान कोई डिग्री हासिल की, तो आप जानते हैं कि सर्विस रूल्स ये तकाजा करते हैं कि कोई सर्विस के दौरान अगर कोई तालीम अपनी जारी रखे या कोई प्रैक्टिकल चीज़, तो उसके लिए बाज़ाब्ता इजाज़त हो अपने एम्प्लॉयर की। वो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, यही डिस्कशन हुआ कोर्ट के अंदर। डबल बेंच ने जजमेंट दिया, कहा कि कमिश्नर सेक्रेटरी ने शील्ड किया है, कमिश्नर सेक्रेटरी शर्मद हफीज़ थे उस वक्त, उन्होंने पोस्ट फैक्टो सैंक्शन करने की कोशिश की लेक्चरर्स को शील्ड करने के लिए ताकि उनकी नौकरी बच जाए। और कोर्ट ने कहा कि इन पे एक्शन इनिशिएट किया जाए, क्योंकि आप एज ए जज रह चुके, आपको भी पता है कि FIR लॉन्च करने का हाई कोर्ट का काम नहीं है। वो कंसर्न डिपार्टमेंट वाले अगर वो देते कि भाई इन्होंने की है ड्यूरिंग सर्विस, उन पे एक्शन इनिशिएट होता। लेकिन तब से सर ये 8 का मामला बना, 8 से लेकर इसमें 22 में भी जजमेंट आई, 6 महीने का टाइम दिया, अभी तक कोई उसमें देखिए जी, ऐसा अगर कोई ऐसा मामला है जहाँ पर रूल्स को बलाए ताक कर रख के कोई काम किया गया हो या जहाँ पर वो रूल्स की वायलेशन हो, तो उसमें मुझे मुनासिब ये होगा कि सरकार उसके बारे में पूरी तहकीकात करे, पूरी जांच करे। अगर किसी ने रूल्स को डिसोबे किया है, रूल्स को वायलेट किया है या किसी ऑफिसर ने महज इसलिए कि किसी एक फ़र्द को या एक जमात को फ़ायदा दिया जाए तो रूल्स को वायलेट किया, मुझे लगता है वो तो है ही, वहाँ तो हो जाने पे वहाँ पर होना चाहिए। बल्कि हर एक चीज़ एक शफाफ तरीके से होनी चाहिए। देखिए अब जो रिक्रूटमेंट के लिए हम 30,000 या 25,000 असामियाँ भेजे हैं, देखिए जो लोग हैं, मैंने कल भी CM साहब से यही क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है, रिक्रूटिंग बोर्ड है, रिक्रूटिंग एजेंसी है, फिर हम उस एजेंसी से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, यहाँ पे CID एंटी करप्शन ब्यूरो जो भी यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन होनी है वो डिपार्टमेंटल नहीं होती, वो उसी कैंडिडेट को दिया जाता है, जाओ जी आप वेरिफिकेशन करवा के लाओ। वो वहाँ से जैसे डिग्री ले आता है वैसे से वेरिफिकेशन भी करवा के लाता है।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेक और फ्रॉड डिग्री, पहली जो कमेटी बनी थी रहबरे खेल के अंदर, उन्होंने फेक और फ्रॉड डिग्री होल्डर्स पाए जो हैं, वो जो इनकी जेन्युइन डिग्री नहीं, इनको इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाए, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं टर्मिनेट किया इसमें गया। नहीं कार्रवाई, देखिए जहाँ भी मैंने वही कहना गुजारिश की ना कि जहाँ पर भी रूल्स को वायलेट किया गया है या जहाँ पर भी कोई बेज़ाब्तगी की गई हो, तो वहाँ पर तो ज़रूरी है कि क्या एक तहकीकात भी हो, और जो बेनिफिशरीज़ हैं हैं उन जो जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है गैर कानूनी अमल का, तो उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। तो उसमें किसी को कोई, मुझे लगता है कि उसमें कोई होना नहीं चाहिए किसी को रिजर्वेशन, क्योंकि सबसे पहले है ये रूल ऑफ लॉ है। तो हमारी सोसाइटी का सारा जो ताना बाना है वो रूल ऑफ लॉ पर है। वो ये है कि कानून की अमलदारी हो, और कानून की अमलदारी होनी चाहिए, और कानून का एहतराम होना चाहिए। और जहाँ पर भी बेज़ाब्ती कोई हुई है, उस बेज़ाब्ती की नहीं सिर्फ तहकीकात हो, बल्कि उस तहकीकात का जो भी मंजर आम पर आए, कोई भी रिपोर्ट हो, कुछ हो, उस पर अमल होना चाहिए। और उनको कोई हक नहीं है जिन्होंने गैर कानूनी अमल किया तो वो कहें कि नहीं हमारा अच्छा, अब रोज़गार है। यहीं पे एक ग्रेवेंस है, वो लेक्चरारों की तरफ से है, जिन्होंने उस वक़्त लीगली उन्होंने अपनी सैंक्शन के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को प्रॉपर चैनल से अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजने के बाद डिपार्टमेंट ने उनको होल्ड कर दिया। वहीं पे आपकी एक जजमेंट मिलती है, जो जब ये रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, इसमें हेल्थ सेक्टर में जो थी, उसमें आपने एक जजमेंट दी। आपने उस जजमेंट में कहा कि जितने भी लोग इसमें हैं वो इन सर्विस, अगर उनका 1 साल का टाइम पीरियड बचा, इनको आप सैंक्शन कर दो कि इनकी स्टडी अफेक्ट ना हो। वहीं पे जो लेक्चरर अपना प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करने के बाद रिप्रेजेंटेशन भेजते, उसको होल्ड पे कर दिया जाता है, और उसके बाद उन्होंने वो स्टडी भी नहीं की। क्या अगर ऑलरेडी स्टैट्यूटरी रूल लेक्चरारों के बने थे, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो सेक्शन, जिन्होंने ली ही नहीं स्टडी, उनको आप सर्विस में रख रहे हो, और जो लीगली आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो उनको भी नहीं आप एंटरटेन कर रहे हो। वही मैंने कहा ना कि ये जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जिनको भी फैसला करने का इख्तियार है कानून के तहत, उनको फैसला कानून के मुताबिक करना चाहिए। और कानून है, जैसे मैंने कहा कि हमारी समाज का जो बुनियाद है, जो बेस है, वो रूल ऑफ लॉ पर है कि हुक्मरानी होगी कानून की, अमलदारी होगी कानून पर। तो जो कानून कहता है, जो कानून तकाजा करता है, बट इन पे तो कोई सर्विस लॉ भी एप्लीकेबल ही नहीं, सिविल सर्विस एक्ट भी नहीं एप्लीकेबल है, जो ये रहबरे खेल लगाए इन्होंने, रहबरे जंगलात। नहीं, जब लगाएंगे, देखिए जब लगाने की बात होती है वो शफाफ होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, उससे पहले अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो वो तो इक्वली लायबल है, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड स्टेज पर है, अगर ये सामने आ जाए, देखिए हम जैसे इंक्वायरी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं जी आप वेरिफिकेशन कराओ, अगर जो रिक्रूटमेंट हुई होती है, सिलेक्शन हुआ क्या होता है। अगर इनकी दबा, मतलब इनकी प्रमोशन होगी या इनको रेगुलाइज पॉलिसी आएगी, इनकी दोबारा से वेरिफिकेशन होगी आपकी सरकार? नहीं, वो तो देखिए, वो तो उन अदारों का काम है जिनको जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में, क्योंकि जब आपके पास सारे वाक़ात होंगे, सारे मामलात होंगे, तो फिर ही कोई बात हो सकती है। और फिर ही वो जो हम कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार कानून ने दिया है कि उसके बारे में उनको फैसला लेना होगा, फिर ही वो लास्ट सवाल ये है जी, क्रिएशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बजट में कहा गया चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट सारा कुछ कर रहे हैं। पूरे हायर एजुकेशन के अंदर लेक्चरारों की पोस्टें वैकेंट जो पड़ी हैं वो वैकेंट ही हैं। नई क्रिएशन के लिए कुछ सब्जेक्ट नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वैल्यू एडेड कोर्स आए हैं। उसमें हेल्थ एंड वेलनेस की बात की गई, और हेल्थ एंड वेलनेस एक सब्जेक्ट है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MBBS और फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। लेकिन वो क्रिएशन हर एक कॉलेज में एक पोस्ट क्रिएट हुई है 2020 से, मतलब वहाँ पे वो सब्जेक्ट चल रहा है, कंपलसरी पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसमें इन्वायरमेंट साइंस का, होम साइंस का जो एलिजिबल नहीं है, उर्दू का, संस्कृत का, ये पढ़ा रहा है। लेकिन ना तो ये दोनों सब्जेक्ट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, ना तो वो पढ़ा रहा है, और ना ही इसमें बजट में कोई ऐसी डिस्कशन हुई कि इन पोस्टों की कोई क्रिएशन होगी, और ना ही ये सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाना है, वहाँ पे भी कोई क्रिएशन है। इसमें देखिए बात ये है कि जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो बाकी जो अभी हर मैदान में तरक्की हुई है, तो अब कुछ नए डिसिप्लिन्स बने हैं जिनको आपको इंट्रोड्यूस करना होगा हायर सेकेंडरी लेवल पर या कॉलेज। सॉरी, मैं एक भूल गया, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है वो, तो ये सारे जो आपका फाइन आर्ट्स का है, तो ये नए नए सब्जेक्ट्स आए हैं जो होने चाहिए इंट्रोड्यूस सब कॉलेज लेवल पर और 10+2 लेवल पर, ताकि ये नए सब। और उससे क्या होगा कि जो
اس میں جنہوں نے اس میں تو ابھی ڈگریاں کی ہوئی ہیں، جن کے پاس ماسٹرز لیول کی ڈگری ہے، سمجھے فائن آرٹس میں، تو ان کو روزگار کا بھی اہتمام ہو جائے گا جب کالج میں ہمیں انٹروڈیوس کریں. جیسے ہمارا کشمیری ہے، کشمیری بھی ہے ہی نہیں 10+2 کیا سر آپ کی سرکار کوئی ایسا پریاس کرے؟ دیکھیے وہ سرکار کا کام ہے، لیکن آپ کا جیسے آپ کا کام ہے، سجیشن دے سکتے آپ کا کام ہے، آپ نے مجھے میری نوٹس میں لایا، اور میرا یہ کام ہے کہ اب سرکار تک یہ پہنچانا کہ یہ جو ہے نئے سبجیکٹ ضرور ہونے چاہیے. کیونکہ اب دیکھیے یہ ان کو ہمارے جو بچے یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں ہماری ہیڈ سے 10+2 سے کالج سے، واقعی ان کو سارے ملک کے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا ہے، ان کے ساتھ کمپٹیشن ہے، نئے سبجیکٹس ہے، نئے مضامین ہیں، نئے ایونیوز ہے، نئے راستے نکل رہے ہیں روزگار کے. تو ہمیں اپنوں کو اکوپ کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے رول کرنے کے لیے. سارا جو نیشنل سینیریو ہے اس میں اپنا رول کرنے کے لیے، کیونکہ اسی سے روزگار کے وسائل. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اتنا ہی نہیں کہ ہمیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے سبجیکٹس، پھر ہمیں ریکروٹمنٹ کرنی ہوگی تاکہ وہ ان سبجیکٹس کو بنانے کے پڑھانے کے اہل ہوں. وہ بھی ضروری ہے، وہ کمپٹنسی بھی ان کی ضروری. اچھا، جوڈیشری کو امپاور کرنے کے لیے بھی بات چیت کی گئی ہے. جوڈیشری کے اندر سر اس وقت بھی لوگ تڑپتے ہیں، جو ہمارا رورل ایریاز ہے، سرٹیفائڈ انفراسٹرکچر بہت ویک ہے جوڈیشری کے اندر. فوٹو اسٹیٹ مشینیں، ڈیجیٹل سسٹم. دیکھیے وہی ہے نا، دیکھیے سپورٹ سسٹم جوڈیشری میں ہونا چاہیے. اب اگر آپ کے پاس 3 لاکھ میٹرز پینڈنگ ہے، یا ہر روز سمجھے یا روز ایوریج میں 40 یا 50 معاملے ہر ایک عدالت، نچلی عدالت ہو، اوپر والی عدالت ہو، تو اس میں جو بھی سپیریئر کورٹس ہوں، تو وہاں اگر 40 سے 50 یا 100 کے قریب آتے ہیں، تو ان سب کے لیے تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ کاپیز کی بات ہے، فوٹو کاپیز کی بات ہے، سرٹیفائڈ کاپی لینی ہو کسی نے، وکیل نے، اس کو بھی دقت ہے. اب یہ ہے کہ اس میں ہمیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی رولز، ICT رول، جو ٹولز ہیں، وہ ٹولز کا استعمال کرنا ہوگا. دیکھیے جو ڈیجیٹل آج کل ہے، دیکھیے ہمارے جیسے ہم اسمبلی میں سارا ہمارے پاس اب پیپر لیس ہے کورٹس، پیپر لیس ہے ایڈمنسٹریشن. اب سارا ہمارے پاس آتا ہے شام کو اپنی ای میل پر یا ہماری فون پر. کل کیا کوشچن ہوں گے، ان کا کیا آنسر ہے، کل کا کیا بزنس ہے، یہ سارا. اب پہلے یہ ممکن نہیں تھا. اب ہماری جو ICT ٹولز ہیں وہ اب انٹیگریٹ ہو گئی ہمارے جو اسمبلی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے. تو اسی طرح ہماری جو جوڈیشری میں بھی، اس میں بھی یہ ہر لیول پر ہونی چاہیے، تاکہ جو ایک ہی نہیں بلکہ ہر طریقے سے جو ہے نا، ہر پہلو سے، ہر طریقے سے، ہر زاویے سے ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم ایک زیادہ فعال ہوگا، زیادہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے، جہاں سے لوگوں کو اس کا. دیکھیے جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم ہے یا جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے، اس سے یہ فائدہ ہے اس کا یہ کہ عوام میں جو دیکھیے اگر کہیں بے ضابطگیاں ہوں، کہیں ناانصافیاں ہوں، تو ان ناانصافیوں کا تدارک کیا جائے، انصاف ہو جائے ان لوگوں کے لیے. اور اگر یہ انصاف نہ ہو تو پھر تلخیاں رہ جاتی ہیں، اس سے جو محروم رہتا ہے نا انصاف سے، اس کی تلخیاں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تلخیاں نہیں رہنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہے ایک جمہوری سسٹم کے لیے کہ جو ہماری جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے بہت ہی ایفیشینٹ ہو. اور دیکھیے آج جو 2 سال 3 سال 4 سال 6 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. تو یہ لیکن اب ہر پہلو میں مجھے لگتا ہے کہ مہراج ملک کو لے کر کیا کہنا آپ کا، اتنی دیر تک PSA میں لیکن اندر. میں یہ کہوں گا جہاں مہراج ملک کی بات آئی تو یہ ہے کہ اس ایشو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہاؤس میں بھی. اچھا، ایک آرگیومنٹ ہمیں کورٹ میں سننے کو ملا. سنیل سیٹھی جی نے آرگیومنٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار کے پاس اختیار ہے رول 2 کے اندر کہ سرکار ایک ریزولوشن پاس کر سکتی تھی، لیکن ہوا نہیں. وہ سرکار نہیں، چلو ہوم منسٹری تو ادھر ہے، لیکن ہاں دیکھیے وہ سرکار وہی آ جائے گی نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے PSA لگے گا ہی کیوں. میں نے جب آپ کو کہا کہ ان کے ایشو کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، ہاؤس کی طرف سے انصاف نہیں کیا گیا، میں کہوں گا میں سب کی بات کروں گا، کیونکہ ایشو مہراج ملک کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ 1 لاکھ لوگوں کی آواز کو دبا سکتا ہے PSA لگا کے. اور اگر وہ PSA کا معاملہ ہے ہی نہیں. دیکھیے PSA ہر ایک کے خلاف نہیں لگ سکتا ہے. PSA جب سیکیورٹی آف اسٹیٹ کا معاملہ ہو یا پبلک آرڈر کا معاملہ، یہاں پر سیکیورٹی آف اسٹیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایک لیجسلیچر کا حصہ ہے.
यहाँ पर सिक्योरिटी का नहीं, पब्लिक ऑर्डर की बात है। हाँ, अगर ये उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो आप जो ऑर्डिनरी लॉ है उस लॉ के तहत मामला दर्ज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जजमेंटों में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अ पब्लिक ऑर्डर। नहीं, बात ये है कि वही है ना, देखिए अगर उन्होंने किसी ऐसा रवैया किया है जो रवैया समझिए आप फौजदारी मामले या जुर्म की हद तक जाता है, तो आप FIR कीजिए, आप उनके खिलाफ आप बेल अपोज कीजिए। आप जब उनको गिरफ्तार किया जाए तो आप बेल अपोज कीजिए, या अगर होगा कॉग्निजेबल, अगर नहीं, लेकिन आपने PSC जहाँ नहीं उनकी समात है और नहीं उन पर फर्ज जुर्म है, तो इंसाफ हमने बहुत सारा जो इशू है हमने इशू के साथ इंसाफ नहीं किया। चलो जी, ये थे जज साहब हमारे साथ। ये सारी जो बातें अभी जज साहब के साथ हुई हैं, पब्लिक की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।